Hi everyone, I welcome you all again in the next video on topic number system where I'm going to discuss a very important concept of this topic which happens to be the concept of divisibility rule. Now as the name says, I believe most of us are able to figure out that one application of divisibility rule is we use them to find out whether a given number is divisible by a number or not. So let's say I want to check whether a number is divisible by 2 or not. So most of you would say, सर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए मुझे बस लास्ट डिजिट देखना होता है, मुझे पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम और भी नंबर्स के आज डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। बट वन इंपॉर्टेंट application of divisibility rule is we use them to find out remainders as well. So in today's session, we are going to discuss everything in detail. So let us start with the first number. Let's start with 2. So as I have already told you, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं उसके लिए मुझे बस लास्ट डिजिट देखना होता है। So what I'm trying to tell you, अगर मेरे पास एक नंबर है, let's suppose 512, और मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। So the rule says instead of dividing the complete number by 2, just divide the last digit of the number. So if you pick the last digit, it's 2. और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट रिमाइंडर्स वैल्यू एज 0। इट मींस जब मैं 512 को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा, मींस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल। But guys, if I change this number a little bit, if I say, okay, now the number is 517, and again to check, क्या ये number 2 से divisible है? So we'll again pick the last digit of the number. And this time you would say, sir, 7 is not completely divisible by 2. Although it is not divisible by 2. But what I can do is, I can find out remainder, isn't it? So had I asked you, what is going to be the remainder if I'm dividing 517 by 2? So again, you don't have to divide the complete number by 2. You'll use the same rule to find out remainders as well. So if you divide 7 by 2, the answer of remainder is going to be 1. What I'm trying to tell you is, अगर तुम 7 को 2 से divide करोगे, so you get 236, and what answer of remainder will get? You get 1. तो इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं जो हमें रिमाइंडर मिलता है। अगर तुमने यहां पे कंप्लीट नंबर को भी डिवाइड किया होता, इंटरेस्टिंगली तब भी तुम्हारा रिमाइंडर का आंसर सेम ही आएगा। सो एनी गिवन डे अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, डिवाइडिंग द कंप्लीट नंबर और डिवाइडिंग ओनली द लास्ट डिजिट, यू वुड से सर लेट्स डिवाइड ओनली द लास्ट डिजिट, दैट विल गिव मी आंसर क्विकली। सो द डिविजिबिलिटी रूल विच वी यूज टू चेक क्या वो नंबर डिविजिबल है, सेम रूल का सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, द इंपॉर्टेंट वन, we use the same rules to find out remainders as well. So let me discuss the next value, it's 4. हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं? See, it's very similar to 2. 2 के केस में हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, बट 4 के केस में we'll check last 2 digits. That's the only change. So मेरे पास फिर से सेम नंबर है 512 और मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। So what I'm saying is, instead of dividing complete number, you will just divide the last 2 digits. Now, if you divide last 2 digits by 4, will you get a remainder of 0? You would say yes, sir. क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। Let's say मुझे एक नंबर मिला है 519. मुझे ये तो पता है कि नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, बट had I asked you, रिमाइंडर क्या आएगा? So you don't have to divide the complete number. Instead, you'll use the same rule to find out remainder. So you would say 4, 4, 16. So remainder is going to be 3. So the same rule is applicable to find out remainder as well. I hope now things are making more sense to you. Let me discuss 8 in the same series because 2, 4 and 8 are very similar. So in case of 8, the only difference would be this time you will be checking last 3 digits. So let's say I have this number 1672. And I want to check whether this number is divisible by 8 or not. So you will not divide complete number, you will just pick the last 3 digits. Is this number divisible by 8?
So you would say 8, 8, 64. You'll get 3 as remainder and then 32, 8, 4, 32. Since 672 is completely divisible by 8, it means I'll get a remainder of 0. It means the number is also divisible by 8. And then the same property holds true here as well. What? The same rule is applicable to find out remainders as well. Now, after understanding the rules of 2, 4 and 8, let's move on to the next important values. Let's discuss 3 and 9 together because they are very similar. So let's discuss them together. Now, the rule of 3 says if the sum of digits is divisible by 3 means divisible means remainders answer should be 0. तो उस केस में नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा. तो लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 7, 8, 9 और मुझे देखना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है. तो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स. सो इफ यू ऐड द डिजिट्स 7 plus 8 is 15. 15 plus 9 is what? It's 24. So if I ask you, is this sum divisible by 3? You would say yes, 24 is divisible by 3. क्योंकि sum of digits 3 से divisible है तो ये नंबर भी 3 से divisible होगा ही. Let me pick one more example. Let's say this is the number which I have been given with. So the first step is you are going to add the digits of the number. So 1 plus 7, 8, 8, 8, 16, 16 plus 3, 19 and 19 plus 9, 28. So this time the sum which you are getting is not completely divisible by 3. 3 की टेबल में 28 नहीं आता है. It means definitely you get some remainder. So if I ask you what is going to be the remainder if you divide this complete number by 3? So instead of dividing the complete number, you will divide the sum of digits. And this will return you the answer of remainder directly. 3, 9, 27 and you'll get a remainder of 1. So whatever divisibility rules I'm going to discuss with you, they have two important applications. One, whether a given number is divisible by the number or not. And second, the same rule is applicable to find out remainder. So let's discuss rule of 9 now. Now in the case of 9, the only difference is the first step is same. You have to find out sum of digits. But this time you will divide this sum by 9. That's the only difference. If this sum is divisible by 9, then I would say the number is also be divisible. So if I give you a number 728,754 and you want to check whether this number is divisible by 9 or not, so the same step needs to be followed here. So 72998 17, 17 plus 7 24, 24 plus 5 is 29 and 29 plus 4 is 33. I'm getting the sum as 33. Is this sum divisible by 9? The answer is no. If the number is not completely divisible, it means I get some remainder. So let us find out the value of remainder. So you would say 9, 3, 27 and the remainder is going to be 6 in this case. Now another thing which I want you to understand is to apply the rules of 3 and 9, it is not important to find out the sum of digits first. Instead, there is an optimization which I could have used to find out the answers more quickly. So let me discuss that optimization with you. So let me pick the same number 728754 और मैं इस सेम नंबर का यूज करूंगा टू चेक क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, बट इन अ डिफरेंट वे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज रूल तो ये बोलता है कि मुझे पहले जो भी डिजिट्स है उनका सम फाइंड आउट करना है. बट इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कुड हैव डन इज सी दिस इज द नंबर. तो तुम क्या करो, तुम पहले उन डिजिट्स को हटा दो जो लेट्स फर्स्ट ट्राई चेकिंग इट विद 3. क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले तुम उन इंडिविजुअल डिजिट्स को हटा दो जो 3 से वैसे भी डिवाइड होती हैं. तो तुम बोलोगे सर इस नंबर में ऐसी एक भी डिजिट नहीं है जो 3 से डिवाइड होती है. अगर मुझे सिंगल डिजिट नहीं मिली तो अब हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे, उनको ऐड करेंगे. तो इफ यू लुक एट दिस पेयर 5 and 4, 5 plus 4 is 9. So remove it because 9 is divisible by 3. 7 plus 2 is 9. तुम कोई भी दो डिजिट के पेयर बना सकते हो, वो सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ेगा. तुम 7 फर्स्ट पिक करो और लास्ट में 2 लिखा है तो वो भी पेयर बन जाएगा. एंड देन सी दिस 8 plus 7 is 15. क्या 15 3 से डिवाइड होता है? द आंसर इज यस. इसका मतलब ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमको पहले सम फाइंड आउट करना है और फिर उसको 3 से डिवाइड करना है. तुम क्या कर सकते हो,
अगर तुमको इंडिविजुअल डिजिट्स मिलती हैं पहले वो हटा दो, तुमको इंडिविजुअल नहीं मिलता है तुम दो दो के पेयर में हटा दो, तुम्हें दो दो का पेयर नहीं मिलेगा तुम तीन तीन के पेयर में हटा दो। द आइडिया इज कि मैं एक ऐसा सम निकाल लूं दो या तीन डिजिट्स को ऐड करके जो 3 से डिविजिबल है। ये सेम काम हम 9 के केस में भी कर सकते हैं। सो लेट मी पिक द सेम नंबर एंड दिस विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि क्या ये रूल एक्चुअल में वैसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर ये कर रहा है तो मेरे को रिमाइंडर का आंसर 6 आना चाहिए। सो लेट अस सी। तो देखो मैंने क्या बोला, क्योंकि हम 9 से चेक कर रहे हैं तो मैं 9 के मल्टीपल्स बनाऊंगा, 9 से डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है, तो मुझे इंडिविजुअल तो एक भी नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 7 + 2 करूं तो मेरे पास 9 आएगा और 9 9 से डिविजिबल होता है। 5 + 4 9, ये भी चले गया। अब मेरे पास दो डिजिट्स रह गए हैं 8 एंड 7। 8 + 7 इज 15। नाउ 15 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, और 15 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा डेफिनेटली आई विल गेट सम रिमाइंडर। And what is going to be the answer of remainder? 919, and the remainder is again going to be 6. So hence it is verified कि मैं चाहे इस रूल को कन्वेंशनली यूज करूं या मैं इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज करूं, मेरे आंसर्स चेंज नहीं होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। सो इन द सीरीज लेट्स नाउ डिस्कस रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 इज वेरी इजी। तुम बोलोगे सर 5 का रूल भी लास्ट डिजिट पे ही डिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये भी कंफर्म्ड है कि ये डिजिट्स क्या क्या होंगे, वही नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं जिनके एंड में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो अगर मेरे पास एक नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसके आखिर में 0 है या उस डिजिट के आखिर में 5 है, तो हम कंफर्म कि दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो इसमें रूल लगाने का तो कोई एज सच नीड नहीं है। बट प्लीज रिमेंबर द सेकेंड एप्लीकेशन। हम ये जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं वो सेकंड एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि अगर मेरे को रिमाइंडर निकालने को बोलेगा तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि 5 का रूल लास्ट डिजिट पे डिपेंडेंट है। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर आया जिसका मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। आई विल सिंपली लुक एट द लास्ट डिजिट। 9 5 से डिवाइड नहीं होता है तो डिविजिबल नहीं होगा। बट सिंस द रूल ऑफ 5 इज डिपेंडेंट ऑन द लास्ट डिजिट, तो मैं 9 को 5 से डिवाइड करके ये देख लूंगा कि रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा। यू वुड से 4 आएगा। इट मींस अगर मैं कंप्लीट नंबर को भी डिवाइड करूं 5 से, तब भी रिमाइंडर का आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर। लेट्स डिस्कस रूल ऑफ 11 नाउ। So please listen to it very carefully. This is the most important one. Let me put a star over it. Let's say I have a 6-digit number with digits A, B, C, D, E, and F. This is a hypothetical number with digits A, B, C, D, E, and F. The first step is you have to number the digits starting from the rightmost position. This is the rightmost position. We'll start numbering from the rightmost position. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. अगर तुम नंबर दूसरे साइड से स्टार्ट करोगे तो आंसर गलत आएगा। सो प्लीज रिमेंबर कि जो भी नंबरिंग होगी वो राइट मोस्ट पोजीशन से होगी। देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स व्हिच आर केप्ट एट ऑड पोजीशन। लिसन टू मी केयरफुली। मैं तुमको ऑड डिजिट्स का सम फाइंड आउट करने को नहीं बोल रहा हूं। आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स व्हिच आर केप्ट, जो रखी गई हैं ऑड पोजीशंस पे। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन कौन सी डिजिट्स ऑड पोजीशन डिजिट है। तुम बोलोगे ये एक ऑड पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन डिजिट है, और ये भी वो डिजिट है जो ऑड पोजीशन पे रखी हुई है। सो विल ऐड बी, डी एंड एफ, एंड देन यू विल फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स व्हिच आर केप्ट एट इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन में जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, रिमेनिंग क्या है, ए, सी एंड ई। Now, after finding the two sums, you have to find the difference. Now, guys, if you ask me, क्या difference हमेशा सेम तरीके से फाइंड आउट करना है? क्या मैं इनको इंटरचेंज नहीं कर सकता? क्या मैं सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन पहले लिख के उसमें से ऑड पोजीशन का सम माइनस नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। इफ यू डू दैट अगेन यू गेट अ रॉन्ग आंसर। तो प्लीज रिमेंबर कि जो डिफरेंस का ऑर्डर है वो हमेशा सेम रहेगा, और यहां पे इस डिफरेंस में हमारे लिए साइन मैटर करता है। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस।
ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आएगा, लेट मी स्टोर इट इन अ वेरिएबल कॉल्ड डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस आया, अगर ये डिफरेंस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब नंबर भी 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज आई विल बी एबल टू फाइंड आउट रिमाइंडर। सिंपल। सो लेट मी पिक अ नंबर। लेट से मेरे पास एक नंबर है 1765671, और मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हाउ विल यू चेक इट? सी, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले मुझे नंबरिंग करनी है फ्रॉम द राइट मोस्ट पोजिशन, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज you have to first find out sum of digits which are kept at odd position। तो इन positions पे जो digits रखी हैं उनका एडिशन करो। तो 1 plus 6 7, 7 plus 6 13, 13 plus 1 14। okay, then find out the sum of remaining digits। 7 plus 5 12, and this is going to be 19, I guess। yeah, we are getting 19 as the difference of the digits which are kept at odd position। Let's again cross verify। 7 plus 5 12, and 12 plus 7 is 19। So when you find the difference, please realize, as I said earlier as well, यहाँ पे साइन मैटर करते हैं, तो तुम साइन को ओमिट नहीं करोगे, तुम बोलोगे सर डिफरेंस का आंसर आ रहा है -5। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? डेफिनेटली ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। बट नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मैं रिमाइंडर का आंसर लिखूंगा क्या? एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुमसे डिस्कस करनी है, जो हम रिमाइंडर्स के केस में भी डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि अभी ये केस यहाँ पे आ गया है, so let us discuss this important property of remainder। Now one of the properties of remainder says, अगर मैं एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहा हूं जो डिवाइजर से छोटा है, तो प्लीज रियलाइज मैं यहां पे -5 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं, जहां पे 11 डिवाइजर है और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो 5 है। तो जब भी डिवाइजर का वैल्यू नंबर से बड़ा होता है तो उस केस में रिमाइंडर का आंसर हमेशा वही नंबर आ जाएगा जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो इंस्टेड ऑफ -5 हैड आई पिक्ड 9, मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा? इस केस में भी तुम बोलोगे सर मेरा जो डिवाइजर का वैल्यू है वो नंबर से बड़ा है, और ऐसे केसेस में रिमाइंडर का आंसर क्या आ जाएगा? वही नंबर आ जाएगा। So please remember this property। Let me discuss one last example and this will give you some more clarity। मुझे बताओ अगर मैं 39 को 41 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तुम बोलोगे सर अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, डिवाइजर का वैल्यू रिमाइंडर से बड़ा है, सॉरी डिवाइजर का वैल्यू जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं उससे बड़ा है। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर का आंसर हमेशा वो नंबर ही आ जाता है। लाइक वैसे इफ आई आस्क यू कि -5 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा? यू वुड से सर वही नंबर आ जाएगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। बट देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर इज कि रिमाइंडर का आंसर कभी भी नेगेटिव कॉनोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। नेगेटिव आंसर्स आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव आंसर्स आ नहीं सकते हैं, बट हम कभी भी नेगेटिव कॉनोटेशन में उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तुमने जब भी रिमाइंडर्स कैलकुलेट किए होंगे, तुमने देखा होगा तुम्हारा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ उसको हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। और अगर आ भी जाए तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू सिंपली ऐड द वैल्यू ऑफ डिवाइजर टू इट। तुम डिवाइजर ऐड कर दो और तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर का आंसर नेगेटिव कॉनोटेशन में आ रहा है, और इस नेगेटिव को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है? डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? 11, ऐड कर दो, and whatever you get here, this is going to be the actual answer of this question। अगर इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा? यू वुड से रिमाइंडर का आंसर 6 आएगा। So I hope through this question you were able to understand how to apply the divisibility rule of number 11। Now there are two more important rules which I would like to discuss and then we'll close the session। The two important rules are, one is 6 and the second value is 12। ये दो नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स डिस्कस करे, जितने भी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया, लेट मी जस्ट मेंटेन अ लिस्ट ऑफ दोस नंबर्स।
So 2, 3, 4, 5, 8, 9, and then I have discussed the rule for 11. मैंने जितने भी नंबर्स डिस्कस करे या तो वो प्राइम नंबर्स थे, प्लीज रियलाइज दिस, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, या वो उसी एक सिंगल प्राइम नंबर की पावर थे। सो 4 2 का ही पावर है, 8 एक सिंगल प्राइम नंबर का पावर है, 9 एक सिंगल प्राइम नंबर का पावर है, isn't it? तो जो भी रूल्स मैंने तुमसे डिस्कस करे या तो वो प्राइम नंबर्स के रूल थे या उन्हीं प्राइम नंबर के किसी पावर के रूल थे। किसी प्राइम नंबर को मैंने कंबाइन नहीं किया यहां पे, उनके कॉम्बिनेशन से कोई नंबर नहीं बनाया, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हम ऐसे नंबर्स को देख रहे हैं जो अलग अलग प्राइम कंपोनेंट से मिलके बने हैं। सो इफ आई डिस्कस अबाउट 6, तो 6 दो अलग अलग प्राइम नंबर से मिलके बना है, 2 to the power 1 into 3 to the power 1. This is same as writing 2 into 3. इसका मतलब कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे उसके लिए 2 और 3 दोनों का रूल यूज करना पड़ेगा। मींस लेट्स से एक नंबर है 216 एंड आई वांट टू चेक क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए मुझे 2 और 3 दोनों से उस नंबर को चेक करना पड़ेगा। 2 का रूल क्या है? यू विल सिंपली लुक एट द लास्ट डिजिट। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 6 2 से डिविजिबल है? यस। अब सेम नंबर को विल चेक विद 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तुम बोलोगे 6 2 8 प्लस 1 9, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। हाँ, ये भी है, क्योंकि ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। इट मींस दिस नंबर इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 6। बट एन इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू इज कि मैं 6 का रूल रिमाइंडर्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर सकता। दिस इज एन एक्सेप्शन। हमने जो भी रूल्स अभी तक डिस्कस करे उन रूल्स का यूज हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन 6 एंड 12 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका यूज मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए नहीं कर सकता। आई गिव यू द रीजन, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसी तरीके से इफ यू सी द रूल फॉर 12, तो जो 12 का रूल है वो भी दो नंबर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर 12 6 इंटू 2 होता है, बट देन आई से 4 इंटू 3 भी होता है। तो ये जो भी कंफ्यूजन तुम्हें हो रहा है, ये कंफ्यूजन तुम्हें ना हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 6 12, 2 3 6। आई होप यू ऑल नो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। हम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 3 को डिवाइड करो, विल गेट 1। So what number you or what canonical form you would get here? 2 to the power 2 into 3 to the power 1. 2 to the power 2 is 4 and 3 to the power 3 to the power 1 is 3. इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं, मुझे उसके लिए कौन कौन से रूल्स चेक करने पड़ेंगे? यू वुड से सर रूल ऑफ 4 एंड 3। सो इसी तरीके से कल को अगर एक क्वेश्चन आता है और वो तुमसे बोलते हैं कि चलो बताओ कौन से नंबर 24 से डिविजिबल है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम सिंपली क्या बोलोगे, तुम सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। So 2 to the power 3 is 8 and then 3 to the power 1 is 3. इसका मतलब कोई नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए मुझे 8 और 3 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। Until and unless the number is divisible by both the numbers जिसके कॉम्बिनेशन से वो नंबर बना है। अब एक नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, तो मुझे उन सबसे चेक करना पड़ेगा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर। तो लेट्स सपोज मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 7 1 2 8 4, क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 12 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए मुझे 4 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। अब देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कौन सा रूल इजी, दोनों इजी हैं, तो मैं पहले 4 से चेक कर लेता हूं। 4 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स। इज 84 डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली? द आंसर इज यस। तो 4 से तो डिविजिबल है। क्या ये सेम नंबर 3 से भी डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट्स। और व्हाट यू कैन डू इज तुम इंडिविजुअली पेयर्स बना लो या इंडिविजुअल नंबर्स को हटा दो, पेयर बनाओ। देखो 7 + 2 9, 8 + 4 12,
एक सिंगल डिजिट रह गया 1। क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। 12 से तभी डिविजिबल होगा व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। अदरवाइज इन एनी केस जो भी कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे उन सिचुएशंस में वो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? एंड प्लीज रिमेंबर दिस, ऐसे जो भी नंबर्स हैं जो डिफरेंट प्राइम कंपोनेंट्स की पावर से बने होते हैं, ऐसे नंबर्स के रूल हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर सकते। रीजन बहुत सिंपल सा है। देखो, अगर तुम 6 का रूल देखोगे तो वो 2 एंड 3 पे डिपेंडेंट है, isn't it? अब ऐसा हो सकता है ना कि मैं एक नंबर को चेक कर रहा हूं 2 से, तो रिमाइंडर का आंसर आ रहा है 1, और सेम नंबर को जब मैंने 3 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर का आंसर 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब एक्चुअल आंसर ऑफ रिमाइंडर क्या है, 2 है कि 1 है, या दोनों नहीं है? तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए हम ऐसे नंबर्स के रूल, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पे दो दो रिमाइंडर्स निकल के आ सकते हैं जो कि दोनों से बिल्कुल अलग है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई कि उनमें से कौन सा एक्चुअल रिमाइंडर है। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू टुडे। If you have confusion in any of the rules, please write down your doubts in the comment box. I would answer them as quickly as I can. But for today, this is more than sufficient. So let's close the session. Thank you and have a nice day.